नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिलाषा नेस्ट भारत की लेक्चर सीरीज द टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। I would like to invite Kamini ji to begin the session with our संगठन मंत्र in her beautiful voice. नमस्कारम। Kamini ji, please. ॐ संगठध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वा हविषा जुहोमि समानि वा आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवादम्। अभिलाषा जी, शायद आपका माइक म्यूट है। Thank you. So for today's session, the topic is War of 99. We are going to discuss the War of 99. जैसे कि हम सबको पता है, कारगिल War fought between India and Pakistan from May to July 1999. We have just celebrated 50 years of victory against Pakistan. But the question is, are we still fighting today? I will request Anmol ji to first start briefing us about Nest Bharat is all about. Then we'll continue with the session. Anmol ji. धन्यवाद अभिलाषा जी। नमस्कार, मैं अनमोल उपाध्याय आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले नेस्ट भारत क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नेस्ट भारत यानी निवेदिता एंडेवर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि भगिनी निवेदिता जी के नाम पर रखा गया है, एक ऐसा प्रयास है जो भारत की महिलाओं को जोड़ता है ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और समाज में किसी भी प्रकार से अपना योगदान दे सके। नेस्ट भारत की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई, जब सभी कोरोना महामारी की वजह से घरों में पूर्णबंदी थे और मुश्किल हालातों से जूझ रहे थे। वहीं नेस्ट भारत एक विचार के रूप में आया जिसका उद्देश्य इस विषम परिस्थितियों में सभी को जोड़े रखना था, और यह बातचीत का एक ऐसा जरिया बना जहां देश के हर हिस्से की महिलाएं अपने विचार, अपने जीवन से जुड़ी बातें, कोई समस्या या कुछ अलग करने के प्रयास या ऐसे किसी भी विषयों पर खुलकर निवेदिता से जुड़ी बाकी महिलाओं से साझा कर सकती है। निवेदिता, it is a platform to tap the underlying potential of young minds of Bharat, redirect, lead with example, give direction to the will to contribute and to awaken the nation and move in the direction of realizing Param Vaibhavam. Nest Bharat aims to focus on girls and women from age group of 15 to 35 who hail from different backgrounds, different socio-cultural identities and different work profiles, where we brainstorm our ideas and work towards the active involvement in the affairs of the nation. निवेदिता के 4 सूत्र हैं: भारत को मानो, भारत को जानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। इन्हीं सूत्रों को ध्यान में रखकर निवेदिता राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रयासरत है, जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिनमें लेक्चर सीरीज, समूह चर्चा, चौपाल और आदि अन्य गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं। मेरी आशा है कि हम सभी की तरह बाकी महिलाएं भी हमसे जुड़ना चाहेंगी ताकि वह भी इस समाज में अपना कुछ योगदान दे सके। धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गौरी जी से कि उनका इंट्रोडक्शन हम सभी को दें।
नमस्कार सभी को। Brigadier Hemant Mahajan ji, who has done MSc and MPhil in Defence Studies. He joined IMA Dehradun in July 1973 and passed out as a commissioned officer in June 1975. He was commissioned into 7 Maratha Light Infantry. He has served extensively in counter-insurgency operations in insurgency and terrorist-prone areas of Jammu and Kashmir, Punjab, etc., and has taken part in all important operations undertaken by Army since 1975. He commanded his battalion, 7 Maratha Light Infantry, in Operation Rakshak in the most difficult areas of Jammu and Kashmir during the times of highest militancy. His unit, which was responsible for stopping terrorists from Pakistan into Jammu and Kashmir, was awarded Unit Citation 18 Gallantry Award. He was responsible for movement of troops and their administration during Operation Parakram. In recognition of his hard work, he was rewarded with the Army Commander's Commendation Award. He also commanded a brigade in Operation Rakshak, again in very intense insurgency areas of Jammu and Kashmir. He had under his command 2 battalions of Border Security Force. As a directing staff, he was responsible for guiding the student officers in understanding various phases of national security, various aspects of management, terrorism, and etc. He has also been awarded by GOC in C Central Command Commendation Card and Youth Seva Medal. His articles are regularly published in all leading Marathi newspapers and has published more than 4,000 articles in last 12 years. Brigadier Hemant Mahajan ji, we are honored to have you as a guest and welcome to the Nest Bharat. Thank you. थैंक यू सर, आप टेक ओवर कर सकते हैं सेशन को। ओके, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये जो यंग ब्राइट माइंड्स है उनके सामने देश की सुरक्षा का एक पहलू जो है 1999 का कारगिल वॉर, उसके बारे में बोलने का आपने मुझे एक चांस दिया हुआ है। मैं कारगिल वॉर के बारे में बात तो करूँगा ही, इसके सिवाय 50 इयर्स ऑफ 1971 वॉर हुआ है, इसके थोड़ी सी उसके बारे में बात करूँगा। और मोर इम्पोर्टेंट कि ये जो वॉर्स होते हैं जो हो गए हैं, दैट इज ऑल पास्ट, लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मल्टीफेरस सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट द नेशन फेसेस, आर वी रेडी फॉर इट? The short answer is by and large we are ready, but we obviously could improve in many aspects. So what I will do is I'll start with my presentation. I'll show you some PowerPoint slides because especially maps and photograph, they speak louder than words. You'll be able to see the screen. You'll be able to see the peaks where the soldiers of ours fought, etc. Just sharing the PowerPoint presentation. Operation Kargil, war in Kargil or war in 1999 was called as Operation Vijay. Okay, Operation Vijay was the name given to it by the Indian Army, and this was was on for about nearly 2.5 months. It was on, and this war was fought in a very let's say high altitude area. It was fought in an area which was very, very cold. It was fought in an area which was very rugged. So firstly, I'll start off by the Vridhavakya of Indian Army: duty, honor, courage. That is कर्तव्य मान साहस. देश की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है. और ये जो presentation है मेरी, it is dedicated to all those gallant officers and men of Indian Army who have laid down their lives in the service of the nation. And may their souls rest in peace in the gallery of bravest of the brave. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास 9 बजे आने के पहले मैंने एक और कार्यक्रम किया था 7 बजे,
जहाँ पे एक हमारी पेट्रोल जो बर्फ में फंसी थी, जो बर्फ के नीचे चले गए थे 30-40 फीट नीचे, उसे कैसे बचाया गया इसके बारे में बातचीत की गई। होता यह है कि द काइंड ऑफ डेंजर इंडियन आर्मी फेसेस ऑन द बॉर्डर are not known adequately to the people, and lot of history is not recorded properly. It remains in the minds of those people who participated in that action. मैं वहां पे था, मैंने मेरे आंख से देखा था, इसलिए मुझे याद है। लेकिन मेरे बाद वाले उनको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा। जो होगा वो बहुत ही एक शॉर्ट वर्जन होगा। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इंडियन आर्मी, the nation became independent in 47. Immediately we started a war in 47, which went on for nearly 1 year. Remember, this war was fought for nearly 1 year. The next war was in 1965, which was fought for about 3 weeks, which we won. The next war, 1971, about which the nation is completed 50 years just now. So we'll talk about it later. Kargil war is what I'm going to talk to you now. And with China, we had a war in 1962. We'll talk about it if the time is available. We'll talk about how we had a skirmish with China in Nathula, a skirmish in Sumdorongchu, etc. Operation Pawan, maybe Operation Cactus, how we went to Maldives, liberation of Goa, Siachen Glacier, liberation of Hyderabad, carrying out anti-terrorist operations in Punjab, carrying out anti-terrorist operations in Jammu and Kashmir. You name a thing, Indian Army is always at war with the enemies of the country. Don't think that there is a peace time. There is nothing like a peace time. The war is going on 365 days a year. That is what we need to understand. Okay, I will start off with a quote. This was a poem which Atal Bihari Vajpayee talked about. He was the prime minister at that point of time in 99, and he said, भारत पाक पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जो बच्चों के जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे. What Atal Bihari Vajpayee said was कि भाई इतने सारी लड़ाइयाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान ने की है, अभी हम लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त बनेंगे. और ये उन्होंने कब कहा? He talked about it when he had gone to Lahore. There's a famous thing called Lahore Bus Yatra, in which Prime Minister Atal Bihari Vajpayee went to Lahore, which is the second most important city of Pakistan. लेकिन जब ये इस प्रकार की कविता कर रहे थे उस समय एकदम मीडिया गागा हो गई कि देखो अभी तो क्रांति हो गई है, अभी तो बहुत अच्छी चीज होने वाली है. लेकिन उसी समय ये मीडिया को लग रहा था कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमारे जैसे सोल्जर जिन्होंने सिर्फ लड़ाई देखी हुई है, उन्होंने बोला इससे कुछ नहीं होने वाला. और श्योर इनफ जब ये कविता बोल रहे थे, जो उस दिन के मीडिया का बहुत बड़ा हाईलाइट था, उनके साथ वो बहुत सारे प्री इंडिपेंडेंस के पहले वाले हीरोज थे, देवानंद वगैरह, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो हीरो थे जब मैं यंग था, और मैं यंग काफी पहले था. शायद आपको ये देवानंद कौन है पता नहीं होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हीरो था. इतना ही मैं आपको समझा देता हूँ अभी, लेकिन उसका कोई रिलेशन वगैरह कोई नहीं है. लेकिन इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि देवानंद की सबसे लास्ट हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, और शायद शर्मिला टैगोर को भी आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन शर्मिला टैगोर का जो ग्रैंडसन है, उसका नाम क्या है, जो भी होगा आपको पता होगा, उसको सब लोग जानते हैं. ठीक है, तैमूर नाम है उसका. अभी शायद 4-5 साल का हो गया है. जब वो 1 साल का था उसके 10 लाख फॉलोअर्स थे इसके ऊपर. तो चलो वो एक बड़ा हीरो था. तो उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो देवानंद की सबसे लास्ट वाली हीरोइन थी, ये मैं बोलना चाहता था. ओके, तो ये सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन लड़ाई की तैयारी पाकिस्तान ने की. और ये एक फेमस फोटोग्राफ है कारगिल का टोलोलिंग के ऊपर, जब हमारे सोल्जर्स ने वहां पे हमारा झंडा लहराया. ओके, हम आगे जाते हैं. ये एरिया कैसे था? दिस वाज एन हाइट varying from 9,000 feet to 13, 14, 15,000 feet. The area was very rugged, and this was fought in Kargil. Now Kargil is a part of Ladakh. Ladakh, you can see it here, and what you can see here is basically our erstwhile
जो हमारा अर्शफाइल जो हमारा जो JNK था, इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पूरा JNK का एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा JNK है, ठीक है। और JNK के अंदर जो ऊपर वाला इलाका है वो है लद्दाख। ये अभी JNK से अलग हो गया है और कश्मीर अभी सिर्फ नीचे वैली और वो इलाका है। लेकिन कश्मीर का काफी सारा एरिया है जो पाकिस्तान के पास चला गया है, जिसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं। और एक ऐसा भी एरिया है जिसे अक्साई चीन बोलते हैं। ये चाइना ने 62 में हमारे से ले लिया बिना लड़ाई करते हुए। तो अभी हमारे पास जो JNK है वो आपको नजर आ रहा होगा। और JNK का ये जो एरिया है, यहाँ पे लाइन ऑफ ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ से जो आपकी जो LOC है, ये है तकरीबन 778 किलोमीटर। यहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है और नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये मैंने आपको इलाका इसलिए दिखाया कि समझ में आना चाहिए कि ये इलाका है क्या। ये माउंटेनस एरिया है। ये माउंटेन्स आप देखिए किस प्रकार से, ऑलमोस्ट फॉर 9 months 10 months इन अ ईयर दे आर फुल्ली कवर्ड विद स्नो। ये देखिए एक स्कर्दू नाम का वहाँ का गांव है जहाँ पे ये सब की प्लानिंग हो गई थी। ये प्लेन का थोड़ा सा एरिया, लेकिन पीछे जो पहाड़ियाँ है नियरली 14,000 फीट। और ये एक ग्लेशियर है, ये तो इसका बाल्टोरो ग्लेशियर बोलते हैं। लेकिन ग्लेशियर एंड लेक्स, व्हाट इज ग्लेशियर? जो स्नो होता है जब वो नीचे आ जाता है, जो डेप्थ जो एरिया थोड़ा सा जहाँ पे लेक्स वगैरह है वहाँ पे आके मिलता है और वहाँ पे उसका बर्फ का पानी बन जाता है और वहाँ से हमारी अलग अलग नदियाँ ये शुरू होती है। तो इसमें से ये एक नदी है जो पाकिस्तान से हमारे छोटा सा नाला है जो हमारे इलाके में अंदर आती है। दूसरा एक आप देखिए यहाँ के ब्रिजेस, यहाँ का जो पानी है, इट्स अ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, so it is not easy to cross this at all, so therefore you have to cross it on the bridges। और अगर आप ये ब्रिज देखेंगे तो ये बेली ब्रिज है, यानी कि ये जो लोहे के इट इज रेस्टिंग ऑन अ आयरन जो रोप्स है उसके ऊपर है। और आप देखेंगे कि ये फुट ब्रिज है, इसके ऊपर आप केवल चल सकते हैं। तो इस प्रकार की ब्रिजेस की सिवाय आप ये पार नहीं कर सकते हो। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये थोड़ा आपने देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसे K2 यानी कि काराकोरम 2 बोलते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पीक है। हिमालयन रेंजेस पाकिस्तान में है, नेपाल में है, हमारे हिंदुस्तान में है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीक है K2 काराकोरम। और हमारा जो सबसे बड़ा है आपको पता ही होगा, वो है उसको बोलते हैं कांचनगंगा या कांचनजंगा। और जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो तो अर्थात नेपाल में है। तो ये हाइट्स बहुत ज्यादा है। ये सब एरिया देखिए कि हमारी तरफ से शत्रु किस प्रकार से नजर आ जाता है। ये है फेमस सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में काफी सारी बात हो जाती है। और ये जो ग्लेशियर जो है, ये इसे ग्लेशियर बोलते हैं। हिमन नदी, जो बर्फ यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे पूरा बर्फ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से जो नदियाँ है, अलग अलग नदियाँ, इनका ये उगम स्थान है। तो ये कारगिल की इम्पोर्टेंस क्या थी अगर आप देखेंगे तो ये है आपका LC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इस तरफ पाकिस्तान है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारा देश है। ये है LC। ये देखिए LC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है ऊपर पाकिस्तान नीचे हम। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, वो रोड यहाँ से जाता है। ये देखिए हमारा रोड जो कारगिल से आगे जाता है, एक ही रोड है। और अगर देखेंगे आप तो ये सीमा से कितना पास है, आप देखिए बहुत ही पास है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम थोड़ी सा इसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जमीन कैसे है। ये है आपका टाइगर हिल, जो जब बर्फ नहीं होती थी इस प्रकार से लगता है। और यहाँ पे हमला किया जो हमारे हीरोज थे उन्होंने, और इसके ऊपर पाकिस्तान के सोल्जर बैठे थे। और ये देखिए ये उनके इसे ये जो एरिया है उसे स्पर बोलते हैं। और ये जो इसके बीच पे यहाँ से नदियाँ आती है, यहाँ पे उसे री एंट्रेंट बोलते हैं। नदियाँ यहाँ से आती है और अगर आपने क्रिकेट के ऊपर हमला करना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से हमला कर सकते हैं, आप यहाँ से हमला नहीं कर सकते। ओके, तो ये शॉर्ट में ये देखिए कितनी रगेड फीचर्स है। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ट्रीज होते नहीं है, पेड़ होता नहीं है। देखिए कितनी रगेड चीजें हैं।
तो और यहाँ पे जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, घोड़े का इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, गाड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है इंडियन सोल्जर, जो अपने पीठ के ऊपर 15 से 20 केजी का वेट लेके चलते हैं, अपना हथियार अपने साथ, जो बाकी सामान है वगैरह वगैरह। तो ये सब देखिए, मैं ये कुछ वहाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ है वहाँ नजर आपको आ रही है, ग्रेट वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, उसके बाद झंस्कार रेंजेस, उसके बाद है लद्दाख रेंजेस, फिर उसके बाद है काराकोरम रेंजेस और आगे। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये इन दोनों रेंजेस के बीच में हो गई थी। और अभी जो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हमारा चाइना के पास हुआ, चाइना के साथ हुआ था लास्ट ईयर, वो यहाँ पे हुआ था। और इस तरफ कश्मीर है, मतलब जो श्रीनगर वगैरह एरिया है वो इस तरफ है। तो ये देखिए कि ये जो नेशनल हाईवे है आप देख रहे हैं कि जो श्रीनगर से निकलता है वाया जोजिला, द्रास, कारगिल ले जाता है, ये बहुत पास है। पाकिस्तान का इरादा था कि इसको काटा जाए। अभी आपको शायद पता होगा कि ये जो रोड है साल में सिर्फ 6 महीना ही खुली रहती है। अभी आपको यही बताना चाहूंगा, मैं कारगिल में मैंने खुद ने सर्विस की हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे एक क्रांति हो रही है। हमारे एक बहुत डायनामिक मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी, अभी जोजिला जो यहाँ से जो रोड जाती है तो वहाँ पे वो एक अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, जिससे ये रोड 11 से 12 महीना ओपन रहेगी, जिससे इस यहाँ पे लड़ना, यहाँ का मेंटेनेंस करना ये आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका जोर है। ये पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान ये चाहता था, उनके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, मिलिट्री लीडर थे जनरल मुशर्रफ, उसके पहले वो दहशतवाद को हमारे देश में उन्होंने शुरू किया था। वो हमें ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स उनका ये था, उनकी पॉलिसी थी गवर्नमेंट्स विल कम, गवर्नमेंट्स विल गो, बट पाकिस्तान विल नेवर चेंज इट्स ग्रैंड स्ट्रेटेजी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। हमारे देश में कुछ पीस लीक्स है, कुछ आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट है, वो सोचते हैं कि कभी ना कभी तो अमन होगा, अमन की आशा होगी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले, अच्छा काम करेंगे वो, पाकिस्तान के साथ उनके आर्टिस्ट को यहाँ आने दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान और अभी पाकिस्तान सपोर्टेड बाय चाइना, ये जो चीज है ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये अभी बहुत साल चलने वाला है। इतना ही आपको बोलना चाहूंगा। और पाकिस्तान की दूसरी एक मोटी चीज यहाँ पे है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनको पता है कि जिहाद करने से वो कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते। इतना तो अकल उनको भी है कि भाई जिहाद करने से क्या वो पाकिस्तान कश्मीर को हमारे से ले लेगा? नहीं। लेकिन दे से जिहाद इज नॉट ओनली एन मीन्स टू एन एंड बट ऑल्सो एन एंड इन इटसेल्फ। Those he who dies in the course of jihad is blessed by Allah। यानी कि जिहाद हम करते रहेंगे, यश मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखेंगे, लेकिन अगर हम मरेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये रोड है कारगिल की, जिसे पाकिस्तान काटना चाहता था। और पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी सेना जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ड्रेस लिया था दहशतवादियों का, यानी कि स्कल कैप है, हाथ पे AK-47 है, जैकेट जैसे लोकल गुज्जर बकरवाल डालते हैं उस प्रकार का है, लेकिन ये दहशतवादी नहीं थे, ये पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। तो ये देखिए उनकी फोटोग्राफ, और ये इनके कुछ मारे गए पाकिस्तानी सोल्जर्स वगैरह। तो ये शॉर्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने 2-3 महीना जहां पर हमारे डिफेंसेस नहीं थे वहां पे इन्फिल्ट्रेशन किया, और वहां के जो ऊपर वाले पीक्स थे जो आपको अभी नजर आ रहे हैं कि इस इलाके में उन्होंने घुसखोरी की। यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट कोई नहीं थी, और यहाँ पे वो अंदर आके चुपचाप से बैठ गए, और 2-2.5 महीने के बाद पता लगा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है हमारे पास इस जगह के ऊपर आई हुई है। तो ये जब तकरीबन मई के महीने में पता लगा तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 11 बटालियंस अंदर आई थी। कहाँ का मशकों में कुछ लोग आए थे, कुछ द्रास के ऊपर आए थे, कुछ काक्सर के ऊपर आए थे। ये मैं काक्सर वगैरह बड़े नाम दे रहा हूँ, वो काक्सर में नहीं आए थे, काक्सर के ऊपर जो माउंटेन पीक्स थे
वहां पर आए थे, चोरबटला में आए थे, जुबाड़ में आए थे वगैरह। तो ये जब पता लगा उसके बाद हमारी पेट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके बाद सबसे पहला क्लैश हो गया बट्टालिक के पास, उसके बाद दूसरा क्लैश, तीसरा क्लैश, चौथा क्लैश। उसके बाद पता ये लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा संख्या में है और ये कोई दहशतवादी नहीं है। तब तक सोचते थे कि ये दहशतवादी है। तो ये लड़ाई कैसे हुई, ये एक यहाँ पे आप ये पढ़िए, लड़ाई में दो चीजें होती है, एक होते हैं सोल्जर्स और दूसरा होता है सोल्जर्स के पास जो होता है उनका वेपन। और हमेशा ये माना जाता है कि इट इज द वेपन विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इट इज द सोल्जर विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेपन। तो अगर आप यहाँ पे पढ़िए, द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन एनी सक्सेसफुल बैटल always has been the valor of an individual soldier, units and formation. It is the man on the battlefield that will tilt the scale of the war. Technologies will come, bigger weapons will come, but ultimately it is the soldiers who win the war. और टेक्नोलॉजी क्या लड़ाई जीत सकती है? अगर आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले अमेरिका की आर्मी, जो मोस्ट मॉडर्न आर्मी है पूरी दुनिया की, वो अफगानिस्तान से भाग गई बिना लड़े हुए, क्योंकि उनके सोल्जर्स जो थे वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास, जो अमेरिका के पास नहीं था, लेकिन उनमें लड़ने की इच्छा नहीं थी। अभी आपकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आज देश को महान बनाना है तो इंडिविजुअल्स ही देश को महान बना सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहां पे अगर आप वर्ल्ड क्लास बनोगे तो ही हम जीत सकते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट थी पाकिस्तानी आर्मी की जब मई के महीने में ये लड़ाई शुरू हो गई। अलग बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बैटल ऑफ टोलोलिंग। तो ये लड़ाई का मैं आपको इतना ही एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। हर जगह पे हमारे जो ट्रुप्स थे उन्हें सिंगल फाइल में जाना पड़ा, उन्हें माउंटेन्स तकरीबन 8,000 फीट से 12, 13, 14,000 फीट पे जाना पड़ा। हमले रात के समय करने पड़े जब टेम्परेचर तब सब जीरो था, -10, -20। वहां पे फायर सपोर्ट यानी कि जो हमारे बड़े शस्त्र थे उनका यहाँ पे कोई फायदा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका ये इतनी रगेड एरिया है कि जो हमारे दारू जो गोले हैं वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये पहले हीरो थे जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, सेकंड राजगुरु से ये थे। उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कैप्चर किया। लड़ाई के में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक दूसरा हीरो है लेफ्टिनेंट विजयन थापर, और ये है उसकी कंपनी। इस कंपनी जब हमले में गई तो उसके पहले हर एक रेजिमेंट का एक अपना अपना देवता होती है। जैसे मराठा रेजिमेंट से मैं हूँ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो इनकी देवता है करणी माता। ये कंपनी करणी माता के सामने लास्ट पे वो प्रार्थना कर रही है, और ये है लेफ्टिनेंट विजय थापर की जो इनके कमांडर थे और जो इस लड़ाई में आगे गए थे। तो ये लड़ाई बैटल ऑफ टोलोलिंग, बैटल ऑफ, इसके बाद ये बहुत सारी बैटल्स हो गई। उसके बाद हम कैप्चर हुआ। देखिए कि ये कैप्चर करने के लिए कैसे गए, तो इस रूट से यहाँ से आगे चढ़े, यहाँ से वो इस प्रकार से आगे गए ये, और यहाँ पे कैप्चर किया। दूसरे में फर्स्ट नागा यहाँ से आगे जाके यहाँ पे आगे गई। तो ये बहुत ही नैरो रिच लाइन्स थी, रात के समय जाना पड़ता था, दुश्मन ऊपर से फायर करता था, आपकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। तो ये और एक हीरो है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिन्हें वहां पे महावीर चक्र मिला। ये 18 ग्रेनेडियर्स के थे। इसके बाद 13 जैकरिफ ने जो अलग अलग हमले किए, उन्होंने हमसे हमला करना शुरू किया, रॉकेट नॉक के ऊपर आ गए, 0.540 पे आ गए। उसके बाद वो ब्लैक इसके ऊपर आ गए। तो देखिए कितनी ये रगेड एरियाज है। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बर्फ नहीं है, लेकिन उस समय तो वहां पे काफी सारी बर्फ भी थी। ओके, तो ये उनका हमला था 0.5140। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। जब ये कैप्चर हो गया तब पता लगा कि अभी हम लड़ाई में जीतने वाले हैं, और उसका हीरो था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, जो पहला परमवीर चक्र उन्हें मिला हुआ है, और उनका एक वीडियो भी, फेमस वीडियो भी है। अगर आप मुझे तो आप एक अगले 10-15 मिनट में रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कारगिल की लड़ाई और डिटेल में सुननी है, ये जो अलग अलग हीरोज थे उनके बारे में सुनना है,
लेफ्टिनेंट विजय थापड़ ने लड़ाई किस प्रकार से की वो करना है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये ब्रेव सोल्जर्स के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये विक्रम बत्रा के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि उनका एक लास्ट इंटरव्यू अवेलेबल है, जब मीडिया उनके साथ मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पिक्चर को कैप्चर किया था। और जब उनको पूछा गया कि अभी आप क्या चाहते हैं, तो उनका फेमस वाक्य था, ये दिल मांगे मोर, कि हम टाइगर हिल के ऊपर जाएंगे और उसे कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट दिन विक्रम बत्रा टाइगर हिल के ऊपर गए। ये है वो टाइगर हिल जहाँ पे वो गए। टाइगर हिल तो कैप्चर हो गया, लेकिन विक्रम बत्रा ये वापस नहीं आए। ये देखिए, ये टाइगर हिल देखिए कि कितना सख्त एरिया है, तकरीबन 15,500 फीट इसकी हाइट थी। तो चलो, ये लड़ाई थी टाइगर हिल की, ये लड़ाई हम जीते। उसके बाद हम आगे बढ़े, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह फिर एक बार आए। ये अलग अलग लड़ाइयाँ थी। तो ये इस लड़ाई में अभी आपको मैं समय की कमी के कारण इतना ही बोलना चाहूंगा कि लास्ट वाला जो पाकिस्तानी सोल्जर था, उसे 26 जुलाई को हमने पूरा बाहर निकाल दिया, इसलिए इसको ऑपरेशन विजय ये नाम दिया है। और ये दिन हम कारगिल विक्ट्री डे के मुताबिक ये करते उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान की कितनी कैजुअलिटीज हुई? 772 ये बोलते हैं, जिसमें उनके 69 ऑफिसर्स थे और 1000 जख्मी हो गए। लेकिन बाद में नवाज शरीफ ने बोला था कि उनके 1500 लोग ये इस पे मारे गए थे और 2000 ये वुंडेड थे। हमारे कितने हो गए? 576। आर्मी ने 576 सोल्जर्स का यहाँ पे खून बहाया और 1122 ये बहुत गंभीर जख्मी हो गए। और सिर्फ एयरफोर्स के 5 एक उनकी एयरक्राफ्ट क्लैश हो गई थी, उसमें उनके 5 लोग चले गए। तो 99% कैजुअलिटी हमेशा किसी भी लड़ाई में ये इंडियन आर्मी की होती है। और ये ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज देखिए कितनी ज्यादा थी। हमारे 25 ऑफिसर उसमें शहीद हो गए, 57 गंभीर जख्मी हो गए। क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है तो ही काम अच्छा हो सकता है। और ये एक बटालियंस थी, 18 ग्रेनेडियर, 2 राजीव, 13 जैकलिफ, 18 गढ़वाल, 8 सिख, जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया। तो इनको हमने सैल्यूट करना चाहिए। परमवीर चक्र जो अवार्ड्स वहां पे दिए गए वो यहाँ पर है। परमवीर चक्र जो हमारा हाईएस्ट अवार्ड है, पहले 3 थे, बाद में 4 हो गए। महावीर चक्र पहले 4 थे, बाद में 7 हो गए। वीर चक्र 29 और सेना मेडल 52। इतने सारे शूरता पुरस्कार इस 2.5-3 महीने की लड़ाई के लिए दिए गए। तो ये एक इस प्रकार की लड़ाई थी कि ये एक लड़ाई थी यंग ऑफिसर्स की, यंग सोल्जर्स की। ये जो सोल्जर्स वहां पे गए, उनको पता था कि हम जिंदा वापस नहीं आने वाले हैं, फिर भी वो लड़ने के लिए गए, क्योंकि देश को सुरक्षित रखना है इसलिए। और यहाँ पे हमने बहुत सारा खून बहाया हुआ है। और जो फेमस कोटेशन है कि लेट अस रिमेंबर दोज हु गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। तो ये एक बहुत है। और ये है कुछ हीरोज, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, नीलदय यादव, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर आचार्य, मेजर राजेश, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन अंजुम, ये सब महावीर चक्र वाले हैं। ये और 2 महावीर चक्र वाले अंदर आते हैं। फिर उसके बाद वीर चक्र वाले विश्वनाथन, कैप्टन अमोल कालिया, सूबेदार बहादुर सिंह वगैरह, ये कुछ और हवालदार मदन लाल, लाल समदार राम कुमार नायक, गणेश, ये सभी जो थे ये वीर चक्र विजेता थे। और ये आप देखेंगे कि ये देश के कौन से भाग से आए थे, तो आप देखेंगे कि ये हमारे देश के सभी भाग से आए थे। ये एक बार फिर देखिए, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, यादव, संजय कुमार, आचार्य, राजेश सिंह, विवेक गुप्ता, अनुज नायर, उसके बाद शेरिंग क्लिफोर्ड, विश्वनाथन, अमोल कालिया, सूबेदार बहादुर सिंह, लोबोज, कैप्टन विजय थापर, ये सब हीरोज की जिन्होंने अपने प्राण इस लड़ाई में दिए और कारगिल लड़ाई जीतने में हमें मदद की। तो यहाँ पे मैं मेरी कारगिल लड़ाई की जो प्रेजेंटेशन है ये अभी यहाँ पे समाप्त करूँगा। और प्रेजेंटेशन तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी 71 का वॉर हुआ, 50 साल हो गए। 71 वॉर हमने ये जीता था। उसकी भी मेरे पास एक अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये वॉर में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये जब 71 का वॉर जीतने के बाद पाकिस्तान को पता लगा कि वो इंडिया के साथ दे कुड नेवर विन अ कन्वेंशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया, सो दे स्टार्टेड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन काराकोरम या ऑपरेशन टोपैज या दहशतवाद। व्हाट इट सिंपली मेंट वाज कि उन्होंने ये फैसला किया कि अभी हम भारत के अंदर उनके अलग अलग हिस्सों के अंदर दहशतवादी और उनके समर्थक को अंदर भेजेंगे और वहां पे गड़बड़ करना शुरू करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन काराकोरम था उसके 3 हिस्से थे। ऑपरेशन काराकोरम हैड 3 phases, K1, K2 and K3. K1 was Khalistani terrorism, K2 was Kashmir terrorism and K3 was terrorism in the rest of India. Khalistani terrorism was at its peak from 1980 to 1990. Indian army shed lot of blood there. They were ably supported by Punjab police at later part of the operations, and ultimately the back of Khalistani terrorism was broken. Till 1980, Kashmir was quiet. It was called Paradise of India. Lot of beautiful Hindi movies were shot here. But post 84, Pakistan had infiltrated their terrorists and their supporters into the government, into the Kashmir police, into their newspapers, into bureaucracy, into every segment of the society. और 84 में वहां पे हिंसाचार शुरू हो गया। Indian Army was deployed for the first time in 1984। और आज का हालात यह है कि जो दहशतवाद है वो लद्दाख में बिल्कुल नहीं है, जो नीचे वाला एरिया है जम्मू कश्मीर का वहां पे नहीं है। इट इज लिमिटेड ओनली टू कश्मीर वैली। इसका जो काराकोरम का जो तीसरा पार्ट था K3, यानी कि दहशतवाद को बाकी की जगह में फैलाना। आपको याद है कि 1993 bomb blast took place in Mumbai. Thereafter we started having bomb blasts in various parts of the country. But suddenly in 2014, a different government came into power. They decided that enough is enough and we will respond to Pakistan in a very proactive manner. Tit for tat, that is the policy they followed. So once we had the Uri attack by Pakistan, we followed it by a surgical strike inside Pakistan. Then again, second time they came at attacked the CRPF convoy. We again followed it by a second surgical strike at Balakot. Now Pakistan is scared that if he carries out any big attacks, it will have a problem. So now bomb blasts have more or less stopped in rest of the India. Now the bomb blasts are occurring only in Kashmir Valley. But along with this, now there are insurgency in the northeast was a big issue in 70s and 80s. It is now under control, but China is trying to once again ignite insurgency here. Now there are Nakshals oblique Maoists who are active in the central part of the country. China is helping them. Now after 2014, China started a different kind of a war. This is not a conventional war. This is not terrorism. This is much more than that. They have given a name of hybrid war. They call it a hybrid war, or they call it a multi-domain war, or they call it a gray zone warfare, or they call it as unrestricted warfare. Now, without getting into too much of bookish definition, what it simply means is China and its proxy Pakistan will fight you on different fronts, multi-domain. It will carry out economic warfare against us. It will carry out economic subversion. It will carry out psychological operations against you. It will carry out propaganda war against you. It will help the Nakshals in the central part of the country. It will help the insurgents in northeast. It will help Pakistan in creating problems in Kashmir. It will stop you at a diplomatic level, at world level. It will intrude into your neighboring countries and create a problem for yourself. So it is multi-domain. You can think of any method and they will use it. They say, the Chinese call it unrestricted war. What unrestricted war simply means is that there is no restrictions. If you can find out any other method of a war, you will follow it. So they are doing it. Now just to give you some example, very quietly how they made
full of say intellectuals in India and all of us, about a year and a half back, somewhere in the month of February, they launched a biological world war against the whole of the world. I repeat the word biological world war. This biological world war, some people thinking that they are smart, they called it coronavirus, or somebody called it COVID-19. The correct name is Chinese virus, and it's a biological world war. This biological world war which China has launched against the complete world has damaged world 10 times more than the first and second world war, which were the most destructive wars which world ever fought. यानी कि पहला और दूसरा जो महायुद्ध हुआ, एक 1914 में हुआ, दूसरा 44 में हुआ, वो तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं। ये जो है इस वर्ल्ड वॉर ने जो हमारे देश का नुकसान किया है, हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करेंगे। हमने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिसके बारे में मैंने बात की, दहशतवाद के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की। आज जितना नुकसान हमारे इस लड़ाइयों में नहीं हुआ, इतना दहशतवाद में नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस कोरोना वॉरफेयर या कोरोना महायुद्ध में हो रहा है। वी हैव लॉस्ट मोर देन 6 लाख इंडियंस अप टिल नाउ बिकॉज ऑफ द चाइनीज वायरस। लेकिन हम ये इतने डरते हैं कि हम इसे चाइनीज वायरस बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आप लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है, आप तो बिल्कुल सेफ हो जहां पर भी आप हो। तो इसे अभी कोरोना ना बोलिए, इसे ना कोविड-19 बोलिए, उसे चाइनीज वायरस बोलिए या वुहान वायरस की जो चाइना ने शुरू किया है। तो ये जो चाइना का जो मल्टी डोमेन वॉर है, ये काफी देर तक चलेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो लड़ाई है, इसमें हम जो एक कॉमन आदमी है उसका क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि क्या हमारा देश इसे अच्छी तरह से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। तो इसमें इसका रिप्लाई देना शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है, चाइना जो हमारे खिलाफ चाइना और पाकिस्तान चला रहा है, इसे हम अच्छी तरह से निपट रहे हैं। अर्थात इसमें इम्प्रूवमेंट की जो जरूरत हमेशा होती है। मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये आप चीजें समझ में आ जाएंगे। उनका एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का एग्जाम्पल आपको याद होगा कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मे they intruded into 4 areas in Ladakh, in East Ladakh. The areas were Galwan, Hot Springs, then Deksang area, and one more area. Now, when they intruded there, Indian Army tried to stop it. Okay. Now, the biggest problem is in that on the Chinese border, since we have signed a agreement with China over a period of 4 years, we cannot use our weapons. So China is, more or less made our weapons of no use on the Chinese border, because while we may have weapon, वो कभी वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते आप। तो anyway, उसके बाद इंडियन आर्मी ने उनको सबक सिखाया गलवान के अंदर। जब गलवान में उन्होंने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, we lost 20 brave soldiers there, including the commanding officer कर्नल बाबू, लेकिन चाइना के 70 सोल्जर्स मारे गए। मैं रिपीट करता हूं, चाइना के 70 सोल्जर्स मारे गए। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज सोल्जर्स हैव शेड ब्लड ऑन देयर बॉर्डर्स आफ्टर 1979। आफ्टर 1979 के बाद पहली बार चीन का खून बहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। उनको समझ में आया कि ये इंडियन आर्मी को वो कभी उसके साथ लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो पारंपरिक लड़ाई है या कन्वेंशनल लड़ाई है, वो होने का अंदेशा बहुत ही कम है। बट व्हाट दे विल कीप ऑन कैरिंग आउट विल बी मल्टी डोमेन वॉर और फाइटिंग विथ यू ऑन वेरियस अदर फ्रंट्स। साइबर वॉर, कि हमारे उन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर हमला किया था, हमारे से वो इलीगल ट्रेड करेंगे, हमारे इलाके में स्मगलिंग करने की कोशिश करेंगे, हमारे इलाके में लेट अस से की प्रोपेगेंडा वॉर करके ये बताएंगे कि आज चाइनीज काफी सारे एजेंट्स हैं कि वो हमारे मीडिया में आके हमें बदनाम करते रहते हैं। तो मैं आपको एक अभी अगले में 2-3 मिनट में मैं रुक जाऊंगा। तो मैं आपको पहले ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मल्टी डोमेन वॉर है, यहाँ पर एक
सामान्य आदमी और ये क्या कर सकता है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर में या हाइब्रिड वॉरफेयर में एवरी इंडियन इज अ सोल्जर। द वॉर हैज रीच्ड योर मोबाइल, द वॉर हैज रीच्ड योर लैपटॉप, द वॉर हैज रीच्ड योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जो उनका कोरोना वाला वॉरफेयर है वो तो आपको पता ही है। तो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसी फील्ड में हम खुद को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए, ताकि उस फील्ड में हम चीजें एक्सपोर्ट कर सके वगैरह। यानी कि मैं एग्जांपल दूंगा स्पेसिफिकली, अगर आप स्टूडेंट है तो आप इतना अच्छा स्टूडेंट बनो कि हमारे इतिहास में माना जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट था महाभारत का अर्जुन। अर्जुन से भी आगे जाओ। अगर आप शिक्षक है, प्रोफेसर है, तो आप इतने अच्छे शिक्षक बनो कि आप द्रोणाचार्य से भी आगे जाओ। द्रोणाचार्य को सबसे अच्छा प्रोफेसर या टीचर माना जाता है। अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के आगे जाओ। अगर आप रिसर्चर हो तो आप नासा, जो वर्ल्ड की टॉप इंस्टीट्यूशन है, उसके आगे चले जाओ। अगर आप फार्मर हो तो फार्मिंग में आप वर्ल्ड क्लास बनो, जापानीज फार्मर्स जैसे। अगर आप समझ लीजिए कि एंटरप्रेनर हो या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट के आगे जाना चाहिए, गूगल के आगे जाना चाहिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जब तक हम हर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास नहीं बनते, तब तक हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं होंगे। अगर हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज आगे नहीं बढ़ते तो हम फिर हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और मजबूत नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो देश की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, इसे बढ़ाने में हमने मदद करनी चाहिए। मैं आपको अभी 3-4 पॉइंट देके ही ये मेरी बातचीत खत्म करूंगा, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉर पे ऊपर बात करना ये अपने आप में एक अलग विषय है। सबसे पहले आप देश के लिए क्या कर सकते हो, अपने फील्ड में आगे जाना तो अच्छा है। अगर आप वाटर सिक्योरिटी में देश का पानी बचा सकते हो, अलग अलग जगह के ऊपर पानी की कमी है, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर आप पेट्रोल डीजल को बचा सकते हो। अगर आप घर के ऊपर सोलर पैनल लगा के आप कन्वेंशनल एनर्जी से बच सकते हो। आप एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करते हुए मदद कर सकते हो। आप डिजिटल इकोनॉमी से का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ पेमेंट डिजिटल से करो, क्योंकि अगर आप कैश करेंगे तो वो ब्लैक में चला जाता है, अगर आप डिजिटल करेंगे तो बैंक में चला जाता है, जिसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ता है। तो ये एक सामान्य आदमी देश के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो मेरे YouTube के ऊपर डाला हुआ है कि आप 24 घंटा देश के लिए काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ एक्शंस मैंने बताने की कोशिश की। कुछ अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहोगे तो ये मेरा जो YouTube के ऊपर आप जाए, मेरा नाम डाले ब्रिग हेमंत महाजन YSM, वहाँ पे इंग्लिश, मराठी, हिंदी में आपको मेरी वीडियोस मिलेगी। तो उसमें एक वीडियो है, हाउ कैन अ कॉमन मैन कंट्रीब्यूट टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। वो वीडियो आपके लिए है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कारगिल वॉर का, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया कि 71 वॉर का वॉर क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको ऑपरेशन काराकोरम के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने जो अभी की लड़ाई चल रही है मल्टी डोमेन वॉरफेयर या अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, थोड़ा उसके बारे में बताया। और लास्ट में मैंने आप क्या कर सकते हो इस लड़ाई को देश के लिए जितवाने के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने बातचीत की। समय की कमी है इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट वर्जन देने की कोशिश की, क्योंकि आजकल का इलाका ये T20 का है। तो T20 में 20 ओवर में हर एक बॉल के ऊपर 6 रन मारनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। मैं यहीं पे रुकता हूँ, अगर कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। एक चैट बॉक्स सामने नजर आ रहा है मुझे, और चैट बॉक्स के अंदर मुझे 9 रिमार्क्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहे, मेरे ख्याल से अभिलाषा कोऑर्डिनेटर लगती है मुझे, क्योंकि उसने खुद को अनम्यूट किया हुआ है। अभिलाषा, क्या मैं जी, थैंक यू हेमंत जी, thank you very much. It is an honor to have you here. It was beautifully curated, very informative and interactive session. The way you have told us about Kargil war, history of Kargil, we will take notes from this and definitely plan for our nation ahead.
मैं रिक्वेस्ट करूंगी Q&A सेशन के लिए, जिसके पास जो भी सवाल हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकता है. बिफोर वी एंड द फेसबुक लाइव, आई वुड रिक्वेस्ट सृष्टि जी टू रिसाइट आवर शांति श्लोका. ओवर टू यू सृष्टि जी. Okay. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. थैंक यू सृष्टि जी. जिनके भी जो सवाल हैं वो हेमंत जी ओके अभिलाषा, मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में कुछ सवाल नजर आ रहे हैं मुझे. अभिलाषा, मैं इस पर जवाब दे सकता हूँ. ओके, ये पहले तो हेलो ये वगैरह हो रहा है. कामिनी मिश्रा बोलती है कि हमें आप पर गर्व है सर, जय हिंद. बहुत अच्छी बात है, जय हिंद वगैरह. लेकिन आज हमारे देश में जरूरत है